Many so first of all, welcome to INS. And talking about your single Chahe Jhangi, seems to blend emotional intensity with a contemporary sonic palette. So, how do you interpret the emotional landscape when you first heard the lyrics as well as the composition of Ismail? I must say, see, this song was very away from a lot of songs that I have done before. माने बहुत सारे गाने हम लोग गाते हैं, at a point of time you get a lot of songs that is in your repertoire. This is also my repertoire. Rhythm and blues is R&B is a genre which is very much up my repertoire of genres that I approach in music. तो मुझे लगा कि ये गाना बिल्कुल फिल्मी गानों की तरह है ही नहीं जो फिल्मों में आता है एंड इट वाज वेरी यूनिक वेरी सिंपल एंड कॉम्पोजिशन भी उतना हाई फाई कॉम्पोजिशन नहीं था लेकिन उन्हें अयाज ने मुझे बहुत अयाज इस्माइल गैव मी सो मच फ्रीडम इतना फ्रीडम दिया सर गाओ मैं और हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे थे मैं पूछता रहा कैन आई ट्राई लाइक दिस ऐसे ट्राई कर सकता हूँ तो कॉम्पोजिशन सुनते मुझे प्यार आ गया था बिकॉज आई वाज लाइक दिस इज a very unconventional melody for me और मेरा ये मकसद है कि when I do songs I just want to do songs that is different from each other ऐसे एक टाइप के गाने छोड़ के I just want to have more variation more variety and more versatility so that I can showcase as a singer also. So, what aspect of the song message resonates with you personally? How do you shape your It's a love message, love message is it's very common for everybody and this is basically love friendship everything comes together in one piece over here you know uh, और क्या कह सकता हूँ it's a very simple message it's not very complicated तो इसीलिए I like something that is very simple but if if it is produced really well I think it resonates really well with the audience too. how did you shape the way you deliver the Oh, I was really in awe of the freedom that he gave me because of course he had a melody in stencil एक बेसिक मेलोडी उन्होंने बना के रखा था फिर आखिर में he also said that this song I made this keeping you in mind और he was right because sometimes you know that okay आपके लिए ये गाना सूट नहीं होता है फिर भी हम लोग ट्राई कर देते हैं बट दिस सॉन्ग आई व्हेन द मोमेंट आई हर्ड इट आई वाज लाइक वाओ दिस इज अ वेरी स्वीट सॉन्ग बहुत ही प्यारा गाना है एंड ऐसा गाना मेरे रिपोर्ट मेरे बॉडी ऑफ वर्क में बहुत कम है तो मुझे लगा ये करना चाहिए चाहे जान ले या दिल मांग ले तेरा आज मैं हो गया मैं साथिया आ did recording this track challenge you vocally or emotionally in ways that were different from the first? या ऑफ कोर्स लाइक एक नया फीलिंग होना बहुत जरूरी है एंड मैं जब गाया था बहुत रॉ उन्होंने रिकॉर्ड करके ले लिया था लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे लाइक सर इसका फाइनल आउटपुट बहुत मस्त रहेगा लाइक एकदम आई विल डू जस्टिस टू व्हाट यू हैव डन एंड जब उन्होंने मुझे एक रफ लिंक भेजा था सर सुन के बताइए आपको कैसा लगा ऐसा लाइक साउंड्स फैब sounded really fabulous and he made me sound really amazing और हमें देखो मैं सिर्फ गा सकता हूँ as a music producer and a composer it's his responsibility to like make everything sound amazing not just the vocals itself but he's really done a fabulous job on the song on the whole song. If you have to describe Chahe Jhangi to someone who hasn't heard it yet, three words on feelings, would you choose? I think I'm definitely this song is going to be in one of the new slow jams playlist of every person out there. Yeah, be it any age. How did your creative chemistry with Shivam evolve during making of this track? Was there anything about his style that surprised or pushed you? No, see, when he said he had a song for me, I wasn't expecting anything. मैं एक्चुअली सच्ची में जो भी गाना मैं करने जाता हूँ मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ तो जब कुछ भी अच्छा आ जाए तो हो गया ना खुशी की बात बट दिस वाज जस्ट रियली गुड सो इट वाज लाइक एन अमेजिंग देखो जब गाना इतना अच्छा होता है और सिंगर इज फीलिंग वेरी इंडल्जेंट सेल्फ इंडल्जेंट माने लाइक
हम अपने आप को पुश करना चाहते हो गाने में, एंड ही इज ऑल्सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन द सॉन्ग एंड नॉट सेइंग अच्छा हम ये सिंपली जाएंगे, ऐसे करके कोई फॉर्मेट नहीं था। तो ही वाज एक्सेप्टिंग ऑफ ये लव की बात होता है ना, लाइक his love for music. So he really showcased that in the song through my voice, through his arrangements, composition, the entire mix. Everything is just sounding very clean, very clear, and very aesthetically done. Talking about the lyrics, Kunal's writing often carries a lyrical depth. Was a specific line in Chahe Jaan Le that granted you a unique vocal interpretation? No, I think it the whole song itself is I have no but lyrically मैं सच बताऊं तो लाइक आई एम नॉट अ क्रिटिक ऑफ गुड और बैड लिरिक। माने मुझे अगर वो साउंडिंग में और मेलोडी के साथ सिंक हो जाता है ना, आई थिंक देन इट इज ऑटोमेटिकली कोई भी गा सकता है। सो आई डिडंट गेज मच ऑन द लिरिक्स, बट I think the song is sounding brilliant at the end of the day, and big kudos to Kunal for writing this wonderful lyrics. You have spoken about the struggles early in your career. So, where music directors didn't have anything to offer you, and you had to treat just a song of chorus, song a chorus. So, when you look back now, how do these movements shape the way you approach your opportunities today? It's taught me what not to be in life, माने डिस्करेज करना और लाइक इनसेंसिटिव होना, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग कुछ ना कुछ तो बाकी देता है, और उसके 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 वजह से बहुत सारे लोगों का दिल दुखता है। तो ये यू इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप तो किसी ना किसी को आप हार्म कर रहे हो, उनको दुख पहुंचा रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड, लाइक यू स्टे हम्बल एंड व्हाट हैपेंड टू यू शुड नॉट हैपन टू समवन एल्स। अगर आप ऐसा एक सिचुएशन में हैं, हाउ कैन यू मेक इट राइट? माने आपके आपके पुराने सिचुएशंस में बहुत बहुत कुछ चीजें सही नहीं हुए, लेकिन अच्छा हुआ उसकी वजह से। आप आपने कुछ किया नहीं उसके बगैर, लाइक लाइक अगेंस्ट इट वी डिडंट डू एनीथिंग, वी जस्ट वेंट ऑन विद लाइफ एंड हम ना वो क्या, हमें ब्रेक करने के लिए बहुत सारी सिचुएशंस हैं, लेकिन आई थिंक दैट शुड नॉट हेल्प अफेक्ट योर माइंड। मैं अपने अपना मेंटल हेल्थ को थोड़ा सेन रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बस एक ही इलाज है कि वो हार्ड वर्क करता रहे, एफर्ट करता रहे अपनी लाइफ में, ताकि जीत हारना किसी ना किसी एक दिन वो जीत तो आ जाएगी आपके हाथ में। Abhi, you mentioned that stepping into the real world early was an eye opener. So, how was it that grounding influenced your resilience and your artistic authenticity? It's it's very normal, no, to like take your pains and take your being an artist actually, just to like bring your aesthetics out of a lot of hardships makes you stronger. I think, like you said, your question has all the answers in it. Resilience, you build all of that through a lot of hardships and everything. And I think life without hardships is meaningless. ये तो इतना मैं बता सकता हूँ। For those who have it easy, you know, I would say experience some hardship. Probably just start being more independent and not depending on a lot of things. तब पता चलता है कि लाइफ में लोग कितना मेहनत कर रहा है, कितना अपना अपना लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहा है। It's brought a lot of balance for me, I must say that. It taught me a lot of balance, like how to balance life, family life, professional life, and my mental health, my physical health, and my love for life. Your life took a turn in 2006 when you unexpectedly got a song to sing harmony for A.R. Rahman. जी। Something you initially thought was a prank. So how do you look back at the moment today, and especially in the context of releasing a new song like Chahe Jaan Le? इन कॉन्टेक्स्ट से चाहे जान ले, अब ये चाहे जान ले चाहे जान ले, मैं तो म्यूजिक नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं उतना ही कह सकता हूँ, बट या आई वुड से दिस इज अ ग्रेट जर्नी ना। वहाँ शुरू होके अभी हम यहाँ हैं। अभी मैं क्या कह सकता हूँ, बस आगे ही तो बढ़ना है, एंड आई एम ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड इन माय लाइफ।
सी देखो, हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हम फ़ोर्स करते हैं और 2-3 चीज़ें हैं जो हमें फ़ोर्स नहीं करनी चाहिए। वो है हमारी डेस्टिनी को और लव को। On a, like you can't force love on people. You can't let people force love on you. So, and second thing is this, जैसा होना है वैसे ही होएगा. Like how they say in भगवत गीता, संभवामि युगे युगे, जो होना है वो कर ही रहेगा. तो आई थिंक मैं बहुत यंग था तब और उस टाइम पे मैं ये सब नहीं जानता था, लेकिन ओवर टाइम लाइक व्हेन यू रिफ्लेक्ट अपॉन कि क्या हुआ अपने लाइफ में, दैट्स व्हेन वो पूरा पैटर्न हमें समझ आ जाता है कि लाइफ ऐसा ही है. तो या टुडे वी आर हियर, आपके सामने मैं बैठ के आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ. आई एम ग्रेटफुल सब कुछ के लिए, शुक्रगुजार हूँ. Over the years, your vocal style has moved fluidly between genres, Bollywood, Hindi, electronica, and so where does Chahe Jaan De sit in your artistic evolution? I think I would consider this is going to be like Indian neo soul kind of a vibe. Money like neo soul is like one part of blues and R&B and soul and everything. So neo soul is something that is very contemporary, but it's simple and at the same time it has got musical intricacies. तो ये वाला एक genre मेरे kitty bag में थे ही नहीं, and I'm happy that I have something like that now. Do you consistently try to reinvent your sound with each track, or does it reinvention happen organically for you? Organically, but the intention is, मेरा यही intention है कि मैं अपने आप को हर बार जो भी करूँ मैं reinvent करूँ, ताकि people can't put a finger on me. मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता कभी कभार, हाँ बेनी है तो फास्ट फास्ट गाना गाएगा, बेनी है तो डांस गाना गाएगा, बेनी है तो पार्टी सॉन्ग्स गाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे लोग बात करते हैं, बट आई सिंग मोर देन दैट. तो इफ अगर कोई एक्सप्लोर करना नहीं चाहता तो ठीक है, तो मैं आप खुद खुद बना दूंगा मैं अपने गाने. तो लाइक दैट इज माय मिशन इन लाइफ. कैसे भी हो, हमें अपनी जर्नी को रुकावट नहीं देनी चाहिए. आई थिंक यू हैव टू कीप इट कंटिन्यूइंग. और बस. एक्टर्स की लाइफ की बात की जाए तो एक्टर्स की लाइफ में कभी उनका कोई एक रोल हिट हो जाता है तो वो वही एक्टर है क्या हाँ एक्टर जी सर, वही हाँ जी. एक्टर के रोल बोलते हैं और मतलब कि एक वो बन जाता है कि ये भी अच्छा है. तो क्या सिंगर्स की लाइफ में भी ऐसा होता है और हाँ जी, जरूर. देखिए, मैं अपना लाइफ में हिंदी में स्पेशली गाने 2008 में मैं अपना जर्नी हिंदी में शुरू किया था. और 2008 में रिलीज हुए थे 3 पिक्चर. एक था जाने तो या जाने ना, जिसमें गाना था पप्पू का डांसा. फिर रिलीज हुआ था युवराज, जिसमें गाना था तू ही तो मेरी दोस्त है, सलमान खान सर के लिए. और फिर रिलीज हुआ था गजनी, जिसमें कैसे मुझे तू मिल गई वो. तो इन तीनों गाने में इतना कॉन्ट्रास्ट है, और तीनों गाने सुपर हिट्स थे तब. मैं आज भी कह सकता हूँ, आप भी अग्री कर लोगे. तो उतना वेरिएशन है ही मेरे वॉइस में. फिर इट जस्ट यू नो if people are seeing that or listening to that, I think they will know what to do. अगर this is the safe mode for everybody, हाँ इस genre के लिए सिर्फ यही है, तो ठीक है. So I have no issues, but अगर मुझे एक गाना ऐसा वापस करना है तो मैं खुद क्रिएट करके मैं रिलीज कर लूँ. और क्या कह सकता do you what role does vulnerability play in your singing, especially for a track like this which carries emotional weight? हूँ. Oh, lot of life experience. like we are all lovers ना. तो लव की बात में तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं. तो उसको तो थोड़ा अप्लाई करना बहुत जरूरी है. माने लाइक जब भी कोई सिचुएशन बताए तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा. अगर आपकी लाइफ में ज्यादा प्यार नहीं होता तो मैं क्या करूं? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. बट of course, you can embrace the little experiences that you faced in your life and apply that. As someone who once you had to fight for even a chorus part, how do you view current landscape for new singers who are trying to be heard? Uh,
I think I don't know what to say. If I say I could be a little controversial, लेकिन आपको अगर आपको controversy पसंद है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाने बनाओ, अच्छा प्रैक्टिस कर लो, फिर उसको परफॉर्म करो। भाई, मैं और क्या कह सकता हूँ। और लाइक अभी सोशल मीडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रहा है, सेंसेशनलिज्म बहुत सारा हो रहा है। आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, अरे यार देखो, जितना भी गाना आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ के 5 घंटा 6 घंटा बैठ के आप लोग जितना भी घंटा करोगे, वो गाना तो हिट हो ही जाएगा रिलीज होने का। इतना केयर लेके आपने टाइम लेके किया है, लेकिन आपका असली टेस्ट माने आपका असली एग्जामिनेशन स्टेज पे है। जो भी कलाकार हो, चाहे वो आप एक्टर हो या संगीतकार हो या कोई भी हो, या जब आप क्या पब्लिक स्पीकिंग करते हो या डांसर हो, ना भी आप स्टूडियो में जाके अब अच्छा इतना कर लिया, ऐसे कट, लेकिन स्टेज पे आके आप नहीं करोगे तो अपना पब्लिक को समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, ये अच्छा आर्टिस्ट है, नहीं ये ठीक है, चलो इसको और भी मेहनत करना पड़ेगा। आई ओनली बिलीव इन दैट। वैनी सर, कॉन्सर्ट्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि मतलब आजकल कॉन्सर्ट जो है बहुत चल रहे हैं और काफी सारे कॉन्सर्ट्स हो भी रहे हैं तो कंपैरिजन जैसे पहले के। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है जो कॉन्सर्ट्स पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहती है उसे थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए स्पेशली इंडिया में। यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ बेसिक सैनिटेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और थोड़ा क्वालिटी, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस हु आर डूइंग हाई क्वालिटी वर्क, उसको उन्हें हमें साइडलाइन नहीं करनी चाहिए। माने उन सबको साथ में लेके जनरलाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देयर इज हाई क्वालिटी वर्क आल्सो। बिकॉज मैं बहुत गर्व से मैं बोल सकता हूँ कि ये इवेंट इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री हमारे देश में। Of course, definitely there are so many cities where people draw in so many limitations. वो रिस्क लेना नहीं चाहता है। वो अगर हम वो रिस्क ले सकता है उस और क्वालिटी के ऊपर हम लोग रिस्क ले सकता है, उसका रिजल्ट तो बहुत अलग ही दिखेगा। So I feel that they can just take a little bit more risk and invest in things that can make the entire infrastructure, live venues, for because अब देखो यंगस्टर्स म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं। म्यूजिक की वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और बहुत सारी जगहों से, सिर्फ एक जगह से नहीं है। तो म्यूजिक ही कर सकता है मेरे हिसाब से, म्यूजिक और क्रिकेट। ऑफ कोर्स मूवीज डेफिनेटली डू, बट एक रात में 2 घंटा 3 घंटा बैंगलोर से, चेन्नई